Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This video session is for English text for class 8 and this is lecture number 26. My dear students, language practice exercises are being done and today our topic is preposition of movement. Let's discuss the preposition first. Prepositions are words that show a relationship between a noun or pronoun and another word. Prepositions क्या है? Preposition ऐसे अल्फाज होते हैं जो relationship show करते हैं noun, pronoun और किसी दूसरे word के दरमियान, ठीक है? और they show relationship of different kinds. और ये जो relationship है ये मुख्तलिफ तरह का होता है. Sometimes preposition show movement. कभी कभार preposition movement show करते हैं और उन्हें हम कहते हैं prepositions of movement. Prepositions of movement show movement from one place to another place. Preposition of movement क्या करते हैं? हरकत, नक़्ल हरकत show करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और ये हमेशा describe करते हैं movement को. Here is the list of prepositions of movement. यहाँ हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें prepositions of movement बताया है और उसमें ये है कि कौन सा preposition किस तरह की movement को show करता है. जैसे first one is across. Across is used to show movement from one side to the other side of something. यानी एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम कहते हैं उस पार. Next we have along. Along is used to show movement in a line next to things which are long and narrow, which are long. क्या मतलब? जैसे हम कहते हैं ऐसी मूवमेंट जो किसी चीज़ के साथ साथ हो, जैसे कहते हैं along the river, along the footpath, along the road, ठीक है? Next we have around. Around is used to show the movement passing something in a curved route. ठीक है? ऐसी जगह, ऐसी मूवमेंट, ऐसी हरकत जो किसी कर्व रूट पे हो, जिसे कहते हैं घूमना, टर्न अराउंड, घूम जाना. ओके, नेक्स्ट वी हैव डाउन. डाउन इज यूज्ड टू शो मूवमेंट फ्रॉम हायर पॉइंट टू अ लोअर पॉइंट ऑफ समथिंग. किसी ऊंची जगह से और नीचे जगह की जो मूवमेंट है उसके लिए हम यूज़ करते हैं डाउन. Then next is from, indicating the point where the movement begins. From किस लिए यूज़ होता है? जहाँ से मूवमेंट शुरू होती है, जहाँ से मूवमेंट शुरू होती है उसको यूज़ शो करने के लिए we use from. अच्छा, into, movement to an enclosed space. किसी जगह पे एंटर होना, किसी जगह जाना, इनक्लोज स्पेस जो चारों तरफ से बंद हो. इनटू द रूम, ही डाइव्स इनटू द स्विमिंग पूल, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव टू एंड टू वर्ड्स एंड वी यूज टू एंड टू वर्ड्स टू शो द मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग. किसी सिम्त में जाने के लिए, किसी तरफ जाने के लिए यूज़ करते हैं टू एंड टू वर्ड्स. Okay, next we have throw. Throw is used to show the movement in one side and out of the other side of something. यानी किसी एक जगह से जाना और दूसरी जगह से निकल जाना, जैसे गुजर जाना कहते हैं. The train goes through a tunnel under the hill. The train goes through the tunnel under the hill. And the last is up. Up is used to show the movement from a lower point to a higher point. यानी नीचे से ऊपर जाना, ठीक है? Example is Jack and Jill ran up the hill. पढ़ा था ना आपने? So इसको कहते हैं up. Movement from a lower point to a higher point. Now take out your books and open page number 32 for exercise 4 and exercise 5. Exercise 4 is choose the appropriate preposition from the list given above to complete the following statements.
You can use each preposition only once. Write the complete sentences in your notebook. ठीक है, तो जो लिस्ट मैंने आपसे डिस्कस की उस लिस्ट में से वी हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स. द फर्स्ट वन इज द बॉय लुक्ड लेफ्ट एंड राइट बिफोर रनिंग डैश द रोड. तो लड़के ने दोनों तरफ देखा, लेफ्ट और राइट, रोड को क्रॉस करने से पहले. तो क्या प्रपोजिशन यूज करेंगे? वेरी गुड, अक्रॉस. द नेक्स्ट इज मैनी ट्रीज हैव बीन प्लांटेड ऑल डैश द स्ट्रीट. सड़क के साथ साथ प्लांट्स लगाए गए हैं. तो साथ साथ अलॉन्ग हमने देखा था, ठीक है, अलॉन्ग, अलॉन्ग. ओके. थर्ड वन इज द फायरमैन क्लाइंब्ड डैश द लैडर टू रेस्क्यू द ओल्ड लेडी. फायरमैन चढ़ा, सीढ़ी चढ़ा बूढ़ी लेडी को बचाने के लिए. तो क्लाइंब्ड डैश द लैडर. वेरी गुड, अप द लैडर. माई ब्रदर इज गोइंग डैश गिलगित नेक्स्ट वीक. माई ब्रदर इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? गिलगित. वेरी गुड. तो वी यूज टू. माई ब्रदर इज गोइंग टू गिलगित नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट, द बॉय टर्न डैश द कॉर्नर एंड स्टॉप. लड़का उस तरफ जाके मुड़ा और रुक गया. तो क्या यूज करेंगे? वेरी गुड, अक्रॉस, सॉरी अराउंड. द बॉय टर्न अराउंड द कॉर्नर एंड स्टॉप्ड. The boy turned around the corner and stopped. Saliha's aunt has come dash Quetta to visit them. Saliha aunt has come dash Quetta. Quetta से आई है उनसे मिलने. तो कहाँ से स्टार्ट किया था मूवमेंट? From Quetta. Okay. The swimmer dived dash the water from a height of 100 feet. किसमें छलांग लगाई उसने? पानी में. ठीक है, तो मैंने कहा था ना इनक्लोज्ड स्पेस. तो क्या आएगा? इनटू द वाटर. द स्विमर डाइव्ड इनटू द वाटर. आई वॉज वॉकिंग डैश माई फ्रेंड व्हेन आई स्लिप्ड एंड फेल. मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा था और स्लिप हुआ और गिर गया. तो डायरेक्शन के लिए वी यूज टू और टूवर्ड्स. तो वी ऑलरेडी यूज टू, सो वी विल यूज हियर टूवर्ड्स. आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स माई फ्रेंड व्हेन आई स्लिप्ड एंड फेल. ओके, सो नाउ 8 and 9 will be your 9 and 10 will be your homework. Our next exercise is exercise 5. Fill the blanks in the story below using the preposition in exercise 1. You can use each preposition only once. ठीक है बेटा, ये एक स्टोरी दी हुई है और हमें ये स्टोरी में जो एक्सरसाइज 1 में preposition यूज किए हैं वही preposition we have to use here. ठीक है, एंड आई विल फिल सम ब्लैंक्स फॉर यू एंड द रिमेनिंग विल बी योर होमवर्क. मैं कुछ ब्लैंक्स तो फिल करूंगा, बाकी आपका होमवर्क होगा. ओके. एज आई वॉज वॉकिंग होम डैश माई ऑफिस. ठीक है, जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो क्या होगा? एज आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम माई ऑफिस. As I was walking home from my office, I saw a man coming dash me from the other side. मैंने देखा एक शख्स मेरी तरफ आ रहा है. I saw a man coming towards me from the other side. I saw a man coming towards me from the other side. I got scared. मैं घबरा गया, मैं डर गया. I looked dash and dash the road and ran to get inside one of the shop. I looked around and across the road. मैंने इधर उधर देखा और across the road, रोड के उस पार देखा. and ran to get inside one of the shop. ताकि मैं वहां जाऊं, भागा उस तरफ कि मैं किसी एक दुकान के अंदर चला जाऊंगा.
I looked around and across the road and ran to get inside one of the shops. Once inside, जब मैं अंदर पहुंच गया एक दफ़ा, I felt safe. मुझे महफूज सा महसूस हुआ. But this feeling of safety was short lived. लेकिन ये सेफ्टी का एहसास बहुत ज़्यादा देर नहीं रहा. Because in the next minute, अगले ही लम्हे, I saw him walking dash the door. मैंने उसको देखा दरवाजे से आते हुए. So I saw him walking through the door. So how many blanks are remaining? 1, 2 and 3. So you have to fill these blanks yourself, and that is your homework. Now take out your diaries for note down the homework. Your homework is do exercise 1, 2, 3, 4 and 5 of language practice of unit 2 into the notebook. ठीक है, लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 और 5 आपने नोटबुक में करनी है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास. अस्सलामु अलैकुम.